Okay, so let's begin today's session. Hi everyone, I'm Aradhika Sabharwal. I'm a counseling psychologist and RCI trainee rehabilitation counselor. I have experience in the field of trauma, anxiety, depression, adjustment, emotional and behavioral concerns, academic difficulties, relationship and couples counseling, and inner child healing as well. Along with me, we have Ms. Shalini Vangani. She's a consulting psychologist and a psychotherapist with expertise in teenage healing, child psychology, and parenting. She believes in a child centered approach and mentorship and is an educator dealing with students from nursery to 12th standard. And most importantly, she's a parent herself. Today, we are here with Parent Eva as we deeply resonate with their mission, where they want to bring together a community of parents. They want to bring about a change in parenting by not just, making parenting easier by bringing together a community, but by providing more information where parents from all backgrounds can come together, share their experiences, and learn from each other. Also, they have made it a mission to bring psychologists, counselors, and other mental health professionals closer to parents to make parenting a little easier for them through different methods. And that is exactly what brings us to today's webinar. So, today is the second part of our two-part series webinar on bullying. In the first part, we talked about bullying at school and other places, and today we'll be covering cyberbullying. इस वेबिनार के एंड में you will get a form to fill in. After completion of both the webinars in the series, you can avail your participation certificates and also get an opportunity to get a free 15-minute session with our experts. And there's something exciting also. Some of you might win special certificates for engaging throughout the webinar and also a gift voucher for actively participating in the activities and throughout the webinar. So keep engaging and participating. Any parent who's not already a part of our WhatsApp group can drop a message on our WhatsApp number mentioned in the slide. The same number हम आपको also share कर देंगे in the chat box that you can use for your reference. आप WhatsApp पे उस नंबर पे अपना name drop कर सकते हैं so that we can reach out to you regarding any certificates and any other details. And if you have any other queries, you can also reach out to us on that number as well. Okay, so let us begin. आज का हमारा टॉपिक साइबर बुलिंग है. But before we get into cyberbullying, let's quickly have a recap of what bullying is. Even though हम ये पिछले वेबिनार में कवर कर चुके हैं, let me give you a brief of it. जब हम बुलिंग के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि बुलिंग सिर्फ मारपीट होती है. बट बुलिंग का मतलब होता है एक्चुअली में बार बार किसी को जानबूझकर हर्ट करना, फिर चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली. बुलिंग तब होती है जब एक पावर इम्बैलेंस होता है दो लोगों के बीच में. वो एज का हो सकता है, पॉपुलैरिटी का हो सकता है, स्ट्रेंथ का हो सकता है या ऑनलाइन रीच का भी हो सकता है आजकल के जमाने में. और ये बिहेवियर जिसे हम बुलिंग कहते हैं ये रिपीट होता है जिससे सामने वाला परेशान हो रहा है. एक बार का मजाक अलग बात है, लेकिन जब किसी को अनकंफर्टेबल फील हो, वो स्केर्ड फील करने लगे या हेल्पलेस फील करने लगे, then that becomes bullying. वो तब सिर्फ मजाक नहीं रहता है. बुलिंग एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन. फिर चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो या कोई भी हो. नाउ बुलिंग के ना कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज बुलिंग सिर्फ वर्बल या फिजिकल पे लिमिट नहीं रहती है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिंग. वर्बल बुलिंग जिसकी हम बात करते हैं, जो बहुत कॉमनली देखी जाती है, जैसे कि किसी का कुछ इंसल्टिंग या एम्बैरसिंग नाम रखना, कभी किसी को चश्मिश बुला देना, पतला, मोटा, लंबू, छोटू ऐसे करके बुला देना, उनको ताने मारना या जिसे हम टॉन्ट्स कहते हैं, उनकी इंसल्ट करना या उनके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिससे वो एम्बैरस हो, अनकंफर्टेबल फील करें. सोशल बुलिंग वो होती है जिसमें हम सामने वाले को एक्सक्लूड करते हैं, उनके अगेंस्ट रूमर्स फैलाते हैं, उनको एम्बैरसमेंट फील कराते हैं पब्लिक स्पेस में, जिससे वो परेशान होने लग जाते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल बुलिंग की. फिजिकल बुलिंग जो बहुत कॉमन और बहुत इजीली दिख जाती है हमें और हमें समझ आ जाती है एक ही बार में, दैट इज किसी को फिजिकली हर्ट करना, जैसे उन्हें धक्का मार देना, गिरा देना, उन्हें मारना या कुछ ऐसा करना जिससे उन्हें चोट पहुंचे फिजिकली, या फिर कई बार उनकी चीजें तोड़ देना या फेंक देना जिससे वो परेशान हो. तो यहाँ पे अल्टीमेट पर्पस होता है उनको परेशान करना. एंड फाइनली आज का हमारा टॉपिक एंड सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ बुलिंग, साइबर बुलिंग. आज हम इसी पे फोकस करने वाले हैं.
तो साइबर बुलिंग ना एक बहुत ही डेंजरस टाइप की बुलिंग है, क्योंकि ये ना 24/7 होती है। हमारी ऑडियंस बहुत ही बड़ी होती है और इससे एस्केप करना या बच के निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस इंसान के लिए जो बुली हो रहा है। साइबर बुलिंग आजकल इतनी कॉमन एंड इजी टू एक्सेस इसीलिए हो गई है क्योंकि स्क्रीन के पीछे छुप के कितना आसान हो गया है ना कि हम सामने वाले को कुछ भी बोलें, कितना भी परेशान करें, हरास करें, कुछ भी करें, हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता है क्योंकि हम तो स्क्रीन के पीछे छुप के कर रहे हैं ये सब। एंड इसी चक्कर में ना लोग इसको उतना सीरियसली लेते ही नहीं है। लोग समझते हैं ठीक है, मैं जो मर्जी बोलूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी को सामने से थोड़ी हर्ट कर रहा हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात साइबर बुलिंग की ये है कि ये अक्सर चुपचाप होती है। पेरेंट्स को तो ज्यादातर पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड जब उन्हें पता चलता है तब तक ज्यादातर डैमेज हो चुका होता है। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। ये नॉर्मल बुलिंग से बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि नॉर्मल बुलिंग में इंसान सामने जब होता है लिमिटेड टाइम के लिए, तभी आप उन्हें बुली कर सकते हैं। लेकिन साइबर बुलिंग के लिए तो आप हमेशा अवेलेबल हो, वो कभी भी आपको एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्योंकि आप लोग देख नहीं सकते, इट बिकम्स इजियर फॉर एनीवन टू बुली। आजकल हम सारे बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने मोबाइल की दुनिया यानी कि सोशल मीडिया से कनेक्टेड है ना। तो जाहिर सी बात है कि जहां लोगों की अवेलेबिलिटी रहेगी, वहां प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। तो जब हम किसी को फोन्स, ऑनलाइन गेम्स, एप्स या सोशल मीडिया के थ्रू बुली या परेशान करते हैं, तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं, जो आजकल सबसे कॉमन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। देखते हैं कि साइबर बुलिंग कैसे होती है। सबसे कॉमन होता है ट्रोलिंग, मतलब बुरे कमेंट्स पास करना सोशली, जैसे कि किसी के पर्सनल कमेंट्स करना, मजाक उड़ाना या मीम्स भेजना, या सोशल मीडिया के थ्रू धमकी देना, या फिर गलत अफवाहें फैलाना। लोग अक्सर किसी रिलेशनशिप में होते हैं या फ्रेंड्स आपस में व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा ग्रुप्स में रहते हैं, एंड फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो स्क्रीनशॉट्स लेके वायरल कर देते हैं। फिर उन्हीं बातों का मजाक बनाते हैं या धमकी देते हैं कि वायरल कर देंगे। ब्लैकमेल कर सकते हैं, पैसे एक्सटॉर्शन करने लगते हैं। एक नया टर्म भी आया है जिसे हम कहते हैं साइबर अरेस्ट। चलिए समझते हैं कि ट्रोलिंग क्या होता है। आपने देखा होगा ना कि सेलिब्रिटीज अपने पिक्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे। लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, इंसल्टिंग कमेंट्स भी लिखते हैं, बेसिकली लोगों को बुरा फील करवाने के लिए या उन्हें डीमोटिवेट करने के लिए करते हैं। इसे ही हम ट्रोलिंग कहते हैं। ये लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं और फेक आईडी से करते हैं ताकि पकड़े ना जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेजेस में या कभी किसी बच्चे को स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है, या टीचर कभी उन्हें डांट दे या किसी बच्चे की लड़ाई हो जाए, तो सारे बच्चे मिलकर उस एक बच्चे को चिढ़ाते हुए मैसेजेस भेजते हैं, मैसेजेस पे ब्लेम करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। एक लिमिट तक तो बच्चा इग्नोर कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी भी हिम्मत टूट जाती है। आजकल मोस्टली बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि गेम ही तो खेल रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप पेरेंट्स आर अवेयर कि इन गेम्स में जैसे कि लूडो या फ्री फायर या रोब्लॉक्स में कोई भी अनजान लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड हमारे बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं ये हमें भी नहीं पता। बच्चों को भी नहीं पता कि वो किसके साथ खेल रहे हैं या चैट रूम्स में किसके साथ बातें कर रहे हैं। हम सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम या ज्यादा से ज्यादा चैट, स्नैपचैट जानते हैं ना। लेकिन और भी बहुत सारे चैट रूम्स होते हैं जैसे कि डिस्कॉर्ड। क्या पता कोई अडल्ट फेक आईडी बना के उनके एज का उनके साथ खेल रहा हो। मैं पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बच्चों को ऐसी गेम्स खेलने मत दीजिए जहां ऑनलाइन अननोन लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कभी बच्चों को गेम्स खेलते हुए सुना है आपने? वो गेम्स खेलते खेलते इतनी गालियां यूज करते हैं। इसीलिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चे खेले तो सिर्फ अपने क्लोज्ड फ्रेंड्स के साथ खेले, वो भी आपके प्रेजेंस में। जैसे हमने बताया कि लोग फेक आईडी बनाते हैं, पहले तो ये फेक आईडी से फ्रेंडशिप करते हैं, बातों बातों में बच्चों से सारे डिटेल्स निकलवा लेते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों को तो इनिशियली यही लगेगा कि सामने वाला उन्हीं की तरह है, और बच्चे क्या, कई बार तो हम बड़े लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं।
बहुत सारे केसेस में सामने आया है कि फ्रेंडशिप करके मिलने बुलाते हैं, बच्चे कैजुअल सोच के चले भी जाते हैं मिलने। यहाँ पर किडनैपिंग के चांसेस हो सकते हैं या कोई और तरीके का नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी बच्चे इमोशनल होके ट्रस्ट करके अपने पिक्स दे देते हैं या चैट करते हैं, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं कि पैसे भेजो वरना तुम्हारे पिक्स एंड चैट्स वायरल कर देंगे। ऐसी कंडीशन में बच्चे किसी को कुछ बोल भी नहीं पाते। इसे तो हम बड़ों को भी बचना चाहिए। एक किस्सा सुनाते हो, मैंने ना ऑनलाइन कुछ खरीदा था जिसका मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, ठीक है, एंड डिलीवरी डेट के एक दिन पहले ही मुझे सिम मैसेज आया था कि आपका एड्रेस मिल नहीं रहा है, वो बंदा आपके एड्रेस पे गया था, कोई खोल नहीं रहा था, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इसलिए हम वापस चले गए। अगर आप चाहते हैं कि ये मटेरियल आपको दोबारा मिले तो एक लिंक भेजेंगे, आप 5 रुपए उसमें भेजिए एंड आपको हमारे रिकन्फर्मेशन के लिए, एंड वो बंदा आपके पास दोबारा आके आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देगा। तो पहले मैंने सोचा कि मैंने प्रीपेड कर दिया, अगर चला गया तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा, बेटर है 5 रुपए देके बुलवा देते हैं। तो उसने फिर मैंने सोचा कि कोई ट्रैप तो नहीं है, मैंने चेक किया तो वेबसाइट भी करेक्ट था। तो मैंने ठीक है बोल के लिंक उसने सेंड किया एंड देन कॉल किया प्रोसीजर बताने के लिए, आप पहले ऐसे करो, सिर्फ 5 रुपए डालो और ये लिंक करो। मेरे इंस्टिंक्ट ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मैंने तुरंत प्रोसीजर फॉलो करते करते उस अकाउंट में से सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, सिर्फ 500 रुपए रखे थे। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने वो प्रोसीजर कंप्लीट किया एंड लिंक क्लिक किया, मेरे अकाउंट से वो 500 रुपए भी गायब हो गए थे। एंड जब मैंने दोबारा कॉल किया कि ऐसा हो रहा है, कोई नंबर नहीं लग रहा था। वेबसाइट चेक किया, वो वेबसाइट भी बंद हो गया था। इसी बात पे पता है, हमारे जो गेस्ट स्पीकर है आज मिस्टर वाघ सर, इनसे जब मैंने कनेक्ट किया था, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, तो इनसे भी मुझे काफी अच्छी खासी डांट पड़ी थी कि आप सबको ऐसी चीजें सिखाते हैं, आप कैसे इनकी बातों में फंस गए। बोलने का मतलब ये है कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। वी जस्ट हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड केयरफुल कि कहीं कोई भी लिंक ओपन नहीं करनी चाहिए इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सब करते हैं, राइट? लेकिन जहाँ ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जैसे Amazon, वी नो दैट दिस इज ट्रस्टेड वेबसाइट, तो ही हमें ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करना चाहिए। वरना अगर कोई न्यू वेबसाइट है तो हमें पहले उनके कमेंट्स चेक करने चाहिए, रिव्यूज चेक करने चाहिए। कई बार आप देखेंगे वहां लिखा होता है फेक आईडी डू नॉट बाय, है ना? और अगर चांस भी आपको लेना है तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज कीजिए, वरना मत करिए। आपको कितनी बार नोटिस किया होगा, रिसेंटली हम सबके साथ एक एक बार तो ये हो ही चुका होगा कि या तो बैंक के कॉल्स आते हैं या कभी आपने अगर म्यूचुअल में डाले होंगे उनके कॉल आते हैं कि आपका अकाउंट अपडेट कर दीजिए, आपका ये मैच्योर हो गया, आप इसमें इतना पैसा भर दीजिए नहीं तो स्टक हो जाएगा या अकाउंट बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी चीज आपके सामने आती है, यू डोंट हैव टू वरी, आपको घबराना नहीं है। आप सुन के रख दीजिए, कुछ फॉलो मत कीजिए। नेक्स्ट दिन बैंक जाइए एंड पर्सनली बैंक से जाके कंफर्म कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आई थी। थैंक यू शालिनी मैम, आई थिंक आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिससे ना सिर्फ बच्चों को, पेरेंट्स को भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया जब इतना बढ़ गया है, वो एक नई चीजें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, वो है इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेंड्स एंड हैशटैग्स। आजकल के बच्चे और टीन्स ना इन्फ्लुएंसर्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे कि कई बार हम नोटिस करेंगे, डेंजरस चैलेंजेस, बॉडी शेमिंग ट्रेंड्स, हेट बेस्ड हैशटैग्स, या कूल लगने के चक्कर में रिस्की बिहेवियर इन ट्रेंड्स को फॉलो करना। हो सकता है आप में से कई लोगों को याद हो, अभी रिसेंटली एक काफी ज्यादा ट्रेंड चलने लग गया था इंस्टाग्राम पे, जहां सारे लोग ना अपने इंस्टाग्राम आईडीज पे ना हैशटैग्स लगा रहे थे। एंड दैट्स नॉट द इशू कि वो हैशटैग्स लगा रहे थे। द इशू इज वो हैशटैग्स लगा रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका मतलब क्या है और उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। एंड आजकल एक नई चीज भी आ गई है मार्केट में, इट्स कॉल्ड फोमो। फोमो का सिंपल सा मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट।
आजकल क्या होता है कि ना कई बच्चे होते हैं, उनको ना कई बार ऐसा लगता है कि कोई ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, एंड अगर मैंने वो ट्रेंड फॉलो नहीं किया ना तो पता नहीं मैं क्या मिस कर दूंगा या कर दूंगी, एंड इससे हो सकता है मेरा कुछ लॉस हो जाए, या सब सोचे कि मैं आजकल के ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट नहीं हूँ, मेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ मैं रिलेटेबल फील नहीं कर पाऊंगी। तो इसी चक्कर में ना वो इतने सारे ट्रेंड्स फॉलो कर लेते हैं ना, वो भी बिना सोचे समझे। इससे क्या होता है कि ना वो जो घबराते हैं, जो उनको घबराहट होती है कि मैं मिस ना कर दूं, जिसे हम फोमो कहते हैं, बच्चों के लिए ये समझना ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि वायरल होना और सही होने में बहुत फर्क है। और ये फर्क सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे ना पेरेंट्स का रोल बच्चों को जजमेंट पास करना या उन्हें डांटना या गुस्सा करना नहीं होता है, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना होता है, ताकि बच्चे समझ सके क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बोलेंगे ना ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे वो चीज जरूर करेंगे। वो कहेंगे मम्मी पापा ने मना किया, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे कैसे वो मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। हमें इसका सोल्यूशन एक ही है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि तुम देखो अपना लॉजिकली दिमाग यूज करो, क्या सही है क्या गलत है, एंड देन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसके साथ साथ ना आजकल एआई इतना एडवांस हो रहा है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, आजकल फेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स इतना कॉमन हो गए हैं ना कि ये सब ना बहुत डेंजरस टर्न ले चुके हैं, जिसे हम एआई मिसयूज बोलते हैं। आजकल आप लोगों ने बहुत कॉमन केसेस सुने होंगे कि फेक वॉइस कॉल्स आ रही हैं यूजिंग एआई, डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, वीडियो कॉल्स आ रही हैं फेक, या फिर फेक फोटोज बन रही हैं, जैसे शालिनी मैम ने बोला बच्चों को शेम करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि फोटो है उस चीज की या वीडियो है तो रियल ही होगा, सही बात ही होगी। दैट्स नो लॉन्गर ट्रू। पेरेंट्स को भी इस सब बातों से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम पैनिक ना करें, हम प्रोटेक्टिव एक्शन ले सके उस सिचुएशन में। आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि ये सब वर्क कैसे करता है। सो आजकल जो हैकर्स या स्कैमर्स है ना, ये लोग क्या करते हैं, दे विल गिव यू अ कॉल, ठीक है, एंड अगर आप कॉल उठाएंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, उधर 1 मिनट का पॉज होगा, आप 2-4 बार हेलो बोलेंगे, कोई है, आप ऐसा कुछ भी बोलेंगे कि गलत कॉल लग गया क्या, कोई कुछ बोलो, हेलो कैन यू हियर मी, आप ऐसे करके बोलेंगे। या फिर अगर आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगी, आपको लगेगा हो सकता है कोई जान पहचान का हो, एंड आप कॉल पिक कर लेंगे। उससे क्या होता है कि वो आपकी वॉइस की एंड फेस की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर वो स्पेसिफिक एआई टूल्स यूज करके उनको कॉपी करके मिसयूज कर सकते हैं। समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंड विद माय फैमिली रिसेंटली। मेरे पापा को कॉल आया कि आपकी बेटी हमारे पास पुलिस स्टेशन में है, शी हैज बीन अरेस्टेड, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उसने 50 lakhs का फ्रॉड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि देखो वो बहुत ज्यादा रो रही है, हमें लग रहा है वो इनोसेंट है, फालतू में फंस गई है इस चीज में, मैं यहाँ यहाँ से इंस्पेक्टर ये बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं हम उसे छोड़ दे तो हम अंडर द टेबल करके बात कर सकते हैं। एंड पीछे से ना लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। माई फादर गॉट रियली स्कैर्ड, बट उन्होंने वहां थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया, लाइक नहीं 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 मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने फोन स्पीकर पे डाला एंड क्विकली उनके एक फ्रेंड ने उनको इशारा किया अपने फ्रेंड को कि एक बार कॉल करो मेरी बेटी को। ही कॉल्ड माई सिस्टर, मेरी सिस्टर ने उठाया, उसने कहा कि चाचू मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं तो कॉलेज में हूँ, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, घर ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना, किसी का भी फोन मत उठाना फालतू का। एंड माई फादर गॉट रियली वर्ried कि ये तो मतलब स्कैम था, फेक कॉल थी, अगर मैं गलती से इनकी बातों में आ जाता, पैसे ट्रांसफर कर देता या कुछ होता तो कितना नुकसान हो जाता। एंड मैंने कट दो कॉल, वापस कॉल आया, देन उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी उसी नंबर की एंड एवरीथिंग। कोई पकड़ा नहीं गया, बट एटलीस्ट इससे हम सेफ हुए, हम बच सके। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स यूज की। व्हेन ही एक्सप्लेन दिस एंटायर केस टू अस, हमें तब ये समझ आया कि कितना ज्यादा लोग यूज करते हैं। वो आवाज में बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी थी जो रो रही थी लड़की। तो हमें समझ आया कि हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, अननोन कॉल्स पे ऐसे ही विश्वास नहीं करना है, नो मैटर हाउ कन्विंसिंग दे साउंड। तो इससे ये समझ आता है कि हम किस तरह से, हमें हर चीज खुद से वेरीफाई करनी चाहिए। अगर हमें हमारे बच्चों के नंबर से भी कोई कॉल कर रहा है तो भी हमें कॉल काट के वापस कॉल बैक करना चाहिए टू कंफर्म कि वो हमारे बच्चा ही था, वो कोई और किसी तरह की टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं कर रहा था। नाउ मूविंग अहेड, हम ये ग्राफ देख सकते हैं। साइबर बुलिंग इंडिया में बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड राइजिंग कंसर्न बन चुका है, विद स्टडीज शोइंग कि काफी ज्यादा हाई प्रेवलेंस हो गई है, पर्टिकुलरली अमंग द यूथ, with figures around 33 to 37% of children experiencing online bullying. कई रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि इंडिया
टॉप है ग्लोबल लेवल पे साइबर बुलिंग के लिए। जैसे कि हमने अभी तक देखा, हमने समझा, साइबर बुलिंग बहुत ही कॉमन हो गई है, बहुत ही अलग अलग तरीकों से होने लगी है। कई स्कैम्स हैं, कई फ्रॉड्स हैं, कई एआई का मिसयूज है, कहीं सोशल मीडिया है। ये ग्राफ देखिए, हमें ये पता चलता है कि इंडिया की कई मेजर सिटीज में साइबर बुलिंग कितनी ज्यादा परसेंटेज में अफेक्ट कर रही है। ये ग्राफ सिर्फ रिपोर्टिंग एंड अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करता है, ग्राउंड रियलिटी तो इससे भी कई ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसलिए फोकस सिर्फ नंबर्स पर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पे होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को डिजिटली सेफ एंड इमोशनली स्ट्रांग एंड अवेयर कैसे बना सकते हैं। नंबर्स हर सिटी के हो सकता है डिफर करें, पर इमोशनल इम्पैक्ट हर बच्चे पे सेम ही होता है। इसीलिए हमें साइबर सिटी की साइबर बुलिंग का जिस हिसाब से सिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है उस पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट हमें ये करना चाहिए कि उसका हमारे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इवन तो हमारी सिटी में ज्यादा ना हो, पर हमारे बच्चे पे हो सकता है। अब जब हम साइबर बुलिंग की इतनी बात कर ही रहे हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग का ना इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं रहता है हमारे बच्चों पे। बच्चे कई अलग तरीके से भी एक्सपीरियंस करते हैं साइबर बुलिंग, और उसके इम्पैक्ट ना स्क्रीन से जब वो हट जाते हैं, अपना फोन रख देते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं, उसके बाद भी दिखता है। ये एविडेंट होता है बच्चे की एंग्जाइटी में, एक डर जब बच्चों में आ जाता है, उनकी लो सेल्फ एस्टीम में, स्लीप इश्यूज होने लगते हैं बच्चों को, स्टमक एक्स होने लगते हैं, हेडेक कांस्टेंट रहने लगता है, कई एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो बच्चे ना एक्सट्रीम एंग्जाइटी एंड पैनिक की वजह से वॉमिटिंग भी होने लग जाती है उनको विदाउट एनी कॉज। बच्चों में सडनली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, छुप 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 के रहने लग सकते हैं, हो सकता है अपना फोन चलाना ही बंद कर दें बिल्कुल ही, दोस्तों से भी बात कम कर दें, या आपको दिखेगा कि वो आइसोलेटेड रहने लगेंगे, घर में भी किसी से बात ही नहीं करेंगे। और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम एंड अनफॉर्चुनेट केसेस में बच्चे सेल्फ हार्म के थॉट्स भी आने लगते हैं उन्हें। एंड इस सब में सबसे डेंजरस इम्पैक्ट होता है साइलेंस। जब बच्चा सोचता है ना कि मैं ये प्रॉब्लम किसी से शेयर करूंगा तो कोई समझेगा नहीं, मैंने किसी से बात की तो कोई मानेगा नहीं, अगर मम्मी पापा को या घर पे भैया दीदी या टीचर को किसी को भी बताया तो मेरी कंप्लेंट मम्मी पापा से कर देंगे, या फिर हो सकता है मेरा फोन ही छीन ले, मुझे दोस्तों के साथ जाने से मना कर दें। जब इस सब की वजह से बच्चे चुप रहने लगते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस इम्पैक्ट होता है साइबर बुलिंग का। Very truly said, ma'am. For all this, we have our guest today. I would now like to introduce our guest, Inspector Keshav Wagh. Sir is currently working at Matunga Police Station, Mumbai. He has 23 years of experience in police service. He has served as a commando officer in Maharashtra's State's Elite Force 1 Commando unit and has also participated in joint training exercises with the National Security Guard. In the field of forensics aid to investigation, he has been honored with a gold medal at the state level. He worked in the Nagpur Cyber Cell for 2 years, where he played an important role along with his team in making it India's #1 cyber cell. During his career, he has arrested Indian and foreign criminals and has used modern investigation techniques to help ensure punishment in serious cases such as murder, rape, theft, and cybercrime. We welcome you, sir. थैंक यू मैडम। पहले तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये जो हम कर रहे हैं साइबर अवेयरनेस, इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम नागपुर में थे तो हमने ये साइबर अवेयरनेस पे बहुत ध्यान दिया था, और अवेयरनेस के कारण ही बहुत नागपुर में ये क्राइम रेट बहुत कम हो गया था। और नागपुर के मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, यहाँ तक कि हमने नुक्कड़ गली में जाके भी उन लोगों को अवेयरनेस दिया था। इसका कारण वहाँ पे क्राइम्स कम हो गए। जानकारी ही अपना खुद का हथियार है। तो सबसे पहले मुझे तो आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरीके से क्राइम होता है। अभी अपन ने देखा कि ये कोविड के बाद में जैसे ही बच्चे पढ़ रहे थे, कोविड के समय में वो सब ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उनके हाथ में मोबाइल आ गया था, और मोबाइल का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के व्यतिरिक्त भी वो लोग कर रहे थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। या फिर पढ़ाई के दौरान भी जो हम लोगों ने सर्च करके रखा होता है, समझो गूगल मीट पे कुछ चल रहा है, अपन गूगल से ऑनलाइन अगर कनेक्ट कर लिया
तो गूगल की सर्च हिस्ट्री में क्या है वो भी कभी कभी उनके सामने आ जाता था। तो बच्चे सर्च हिस्ट्री देख के भी कभी कभी बड़े हो गए हैं, उनके सामने ऐसी ऐसी पेरेंट्स की चीजें आ गई है जो कि नहीं रहना चाहिए। वो कभी किसी को मालूम ही नहीं कि हिस्ट्री कभी ये डिलीट करना चाहिए। इतनी सारी स्क्रीन्स उनके लिए अवेलेबल रहती है, किसी किसी का इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन्स अवेलेबल है, उसने क्या देखा है सारा उसका अलग अलग स्क्रीन में सेव रहता था डेटा। इसलिए बच्चों में अचानक ये दिमागी बड़ापन आ गया और बच्चे कुछ बड़े जैसा करने लगे हैं। अभी अ, ये एक बात होगी, दिस इज अ वेरी सीरियस नेचर। एंड इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बच्ची थी हमारे पास में कि वो 12 साल की थी। एक पुलिस स्टेशन का नाम है नागपुर का, वहां से वो लोग सीधा हमारे पास में आए और बच्ची के बारे में उसका पिताजी बहुत घबराते हुए डरते हुए बोल रहा था कि सर ये देखो हमारा केस देखो। ये नौबत इसलिए उनके पास आई क्योंकि उसने बच्ची पे ध्यान नहीं दिया। 24 घंटे वो बच्ची मोबाइल देख रही है। 12 साल की बच्ची ने फेसबुक का अकाउंट निकाल लिया। एक्चुअली फेसबुक पे अगर जाना है, सोशल मीडिया पे जाना है, तो 13 साल का उम्र उन्होंने रखा है वहां पे एक नॉर्मली। उसके नीचे का बच्चा एफबी वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन उसने ज्वाइन कर लिया और सामने से फ्रेंडशिप कर ली। फ्रेंडशिप, बहुत सारे लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे, तो उसको भी आई। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि अरे किसी ने दूसरे लोगों ने दिया हुआ चॉकलेट हमने नहीं लेना है, उसी तरीके से ऑनलाइन में चॉकलेट रहता है, उसको मीठी बातें करना। वो बच्ची जब अपना फोटो वगैरह कोई ऐसा अपलोड कर देती थी, तो एक आदमी था वो उसको बहुत मीठी बातों में बोलता था कि तुम्हारा फोटो बड़ा सुंदर है, आज तुम्हारी सैंडल बड़ी सुंदर है, ये सुंदर है, वो सुंदर है। वो उसके झांसे में आ गई और फिर उसने उसको कुछ फोटो मांगे कि तुम्हारा दूसरा भी फोटो दे दो। अरे वाह वाह बहुत अच्छा फोटो है। ऐसा करते करते उसने उसके न्यूड्स तक ले लिए उससे। फिर उसको कहा कि तुम्हारी फ्रेंड है? उसने कहा हाँ है। तो उसने उसके फ्रेंड्स के भी उसके पास न्यूड्स ले लिए। फिर उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि बच्ची अपने इसमें आ गई है, झांसे में आ गई। फिर उसने उसको और पूछा कि तुम मुझे मिलने के लिए आ जाने का, मैं नागपुर में आ जाऊंगा, वहां पे तुम मुझे मिलना है। तो बच्ची डर गई, नहीं बोली मैं नहीं मिलूंगी। तो उसने उसको चाकू वगैरह ऐसे फोटो भेजे। बच्ची डर गई। उसने कहा कि मैं घर से ही नहीं निकलूंगी। तो उसने कहा अगर तुम नहीं घर से निकलोगी, तुम्हारे मम्मी पापा निकलेंगे, मैं उनको मार दूंगा अगर तुम नहीं निकली। और अभी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, देखते हैं। तो बच्ची अपने माँ बाप को बाहर ही नहीं जाने दे रही। तो डर गई, उसको लगा कि वो बाहर सच्ची में मार देगा। और वो केस हमारे पास में आया। बच्चों पे ध्यान ना देने के कारण, और बच्चों के हाथ में पूरा एकदम मोबाइल 100% दिया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो ये बात हो गई थी। और दूसरा जैसे कि अपन गेम्स का देखते हैं। गेम्स खेलते हैं बच्चे मोबाइल पे, किसके साथ खेल रहे हैं, वो अपोनेंट रहता है, किसी के साथ तो खेलना पड़ेगा। कुछ गेम सेल्फ रहते हैं, कुछ सामने वाले के साथ रहते हैं, उसमें चैटिंग भी करते हैं लोग। चैटिंग करते करते उनके ध्यान में ये बच्चे, सामने के बच्चे के साथ में ये बच्ची जो थी, वो बच्ची गेम खेल रही थी। उसने कहा कि, सामने वाले ने कहा हार जीत पे खेलते हैं, अगर तुम हारी तो तुम मुझे 2,000 दोगी, मैं हारा तो मैं तुम्हें 2,000 दूंगा। बच्ची ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपना फोटो दो। उसने कहा ठीक है। गेम हुआ, बच्ची हारी, उसने फोटो मांगा। फोटो मांगा, बच्ची ने फोटो भेजा। उसने कहा ये नहीं मैं बोला था, मैं आपको बोला था मैं न्यूड फोटो चाहिए मेरे को। तो बच्ची ने हाँ ना करते हुए उसको न्यूड फोटो दे दिया। फिर वो ब्लैकमेलिंग करने लगा, अगर तुम्हारा मैं फोटो मेरे पास है, 2,000 नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे गांव में भेज दूंगा फोटो। तो उसके पास नहीं थे, उसने अपना कार्ड भी तोड़ के फेंक दिया। लेकिन उसने अपने गांव के बच्चे को सच्ची में फोटो भेज दिया। अब ऐसे समय में वो पेरेंट्स हमारे पास में आ गए और गेम खेलते समय कुछ अपने कार्ड्स वगैरह अपने प्ले स्टोर पे अटैच करते हैं। कोई नया अगर ऐप परचेस करना है तो उसमें से पैसे कट जाते हैं। वैसे ही गेम खेलते समय कॉइन्स वगैरह लेना है, उसमें वो रहता है, उसमें कॉइन्स लो, डायमंड्स लो और आगे बढ़ते रहो, आगे ज्यादा गेम खेलने के लिए। तो वो बच्चे अपना
क्लिक कर देते हैं, वो आता है कि अगर आपको कॉइन चाहिए तो इतने रुपए में मिलेंगे, बच्चे अपना क्लिक करते रहते हैं। ऐसे करते करते एक जन के बहुत सारे लाखों रुपए तक उसके चले गए, वो अकाउंट से जा रहे, उसके पिताजी को पता ही नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, उसको कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है। लेकिन महीने भर में जब उसके बहुत सारे पैसे गए तो उसके ध्यान में वो स्लिप निकालते समय आया कि मेरे बहुत सारे पैसे गए। एक एक केस में ऐसा होता है, बच्चों को कभी अभी बड़े बन गए तो बच्चे 18 साल के नीचे का कानूनन बच्चा ही हो, लड़का हो या लड़की हो, वो जो माँ बाप देखते हैं वो साइट्स वो भी देखने लगे हैं। और एफबी पे, व्हाट्सएप पे उनको ऐसा सेक्सटॉर्शन वाला लिंक आ जाता है, जैसे कि लड़का है तो उसको लड़की का लिंक आ जाएगा, ये मेरे से बात करो, मैं ऐसी बात करूंगी, वो बात करते करते वो कपड़े उतारेगी। या फिर लड़का होगा तो वो भी वैसा ही करेगा कि तेरे लड़की को बोलेगा कि तेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, थोड़ा ये हटाओ, या फिर बोलेगा ये तुम्हारा पल्लू हटाओ या फिर ड्रेस निकालो। ऐसा करके उसका एक फोटो ले लेगा और फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करेगा, उसको बहुत बुलिंग करेगा, वो सताई जाएगी। तो ऐसे में बच्चे किसी से बोलना तक बंद कर देते हैं, अपना कार्ड वार्ड फेंक के मोबाइल दूर रखना पसंद करते हैं, या फिर रोने लग जाते हैं अचानक। ये सारी जो सिम्टम्स है, ये आपको मैडम ने ये सब बताया अभी, ये सारी चीजें होती है बच्चों के साथ में। और इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों के हाथ में पूरा मोबाइल देना यानी गांजे की पूड़ी उसके हाथ में दिए जैसा है, नशा देने जैसा है उसके हाथ में। आपने देखना चाहिए कि अगर बच्चों के हाथ में मैं मोबाइल देता हूँ तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। हमने इसका बहुत सारा डेटा अभी आपके सामने भी है। ये 36 ऑफेंस हमने 3 साल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दाखिल किए थे। बच्चे क्या सर्च करते हैं क्या नहीं सर्च करते, इसके बारे में भी हमने दुर्लक्ष्य करने के बाद में क्या होता है, इसके सारे पहलू सभी लोगों को तो ऐसे मुंह भी बताए थे, और पेपर्स में भी बहुत सारे रिपोर्टर्स ने जो बातें सुनी तो वो छाप के रखी थी, जो कि क्राइम रेट कम करने के लिए हमें काम में आई है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारा लीगल प्रोटेक्शन रहता है, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। ये सब आप जो देख रहे हैं, आईटी एक्ट है, बीएनएस है, पॉक्सो है, खास करके बच्चों के लिए, इनका उपयोग करके हम किसी को भी नकेल कस सकते हैं, उसको जेल में या फिर उसको न्याय तक, बच्चों को न्याय मिले ऐसा काम कर सकते हैं। इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है इसमें। मैं सारे पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहूंगा यही कि साइबर बुलिंग हमें दिखती नहीं है लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर होता है, और इससे अगर बचना है तो हमें बच्चों को विश्वास लेना लेना पड़ेगा, और बच्चों ने भी वैसे ही विश्वास अपने पेरेंट्स पे दिखाना चाहिए। पेरेंट्स ने कभी गुस्सा करते हैं तो इसके कारण बच्चे नहीं बताते हैं। अभी मैडम ने यही जिक्र किया था, गुस्सा ना करते हो उसका फ्रेंड बनो। ऐसा नहीं कि अभी बच्चों का या फिर हमारे साथ में भी ये बहुत सारी बातें हो सकती है। अगर हम फेसबुक इस्तेमाल ही ना करें, इंस्टाग्राम इस्तेमाल ही ना करें तो हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये हमारा जो भ्रम है वो हमने निकाल देना चाहिए। इस्तेमाल करना है लेकिन सेफली इस्तेमाल करना है, क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है, इसके बारे में हमें भी समझना है और बच्चों को भी समझाना है, तभी हम इसमें सेफ रह सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमारे लिए राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल का एक नंबर है 1930, उस पे भी हम कॉल कर सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे cybercrime.gov.in ये वाला वेबसाइट है हमारा, यहाँ पे पोर्टल है, यहाँ पे भी आप जाके अपना ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी वाला है तो आप आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कोई साइबर पुलिस स्टेशन रहता है या साइबर सेल रहता है वहां पे भी आप जा सकते हैं। और बच्चा बहुत ही ट्रॉमा में चला गया उसको, जैसे कि मैंने वो सेक्सटॉर्शन वाले केस में देखा, एक बच्चा था वो छत पे चढ़ गया, कूदने को ही देख रहा था कि क्या हो गया, वो किसी को बता ही नहीं रहा था। फिर बाद में पता चला कि उसका किसी लड़के ने वीडियो निकाला है, लड़की बन के किसी ने वीडियो निकाला है और उसको पूरा न्यूड करके ब्लैकमेलिंग कर रहा है, फिर तेरे एफबी से मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा, ऐसा करके यहाँ तक हो जाता है। और ये जो चीजें हैं, ये मानसोपचार तज्ञ जो है ये आपको तो बता ही देंगे, मेरा अनुभव मैं बताता हूँ। एक नॉर्मल सी बात है, अगर अपन ने
किटली अगर आंच पे रख दी तो उसमें का पानी हो तो उबल ही जाएगा। वैसे ही किसी को भी उत्तेजित किया जाता है तो उत्तेजना में कुछ कृत्य कर सकता है, वो इंसान है। ये अपन ने ध्यान रखना चाहिए, फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। बस इतना ही करके मैं अपना है ना समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बच्चों के हाथ में मोबाइल तो मिलता ही मिलता है। आजकल हर छोटा बच्चा उसके हाथ में भी मोबाइल है, और पेरेंट्स जो है कई बार ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता कि उन्होंने कौन सी खोली हुई है एप्स। बस उन्हें ये लगता है कि बच्चे अपना लगे हुए हैं, हमारे पास फ्री टाइम है और हम अपना स्पेंड कर रहे हैं टाइम। और यहीं पे आके जो बच्चे हैं ये गलत जो एप्स में फंस जाते हैं, और कई बार इसके जो रिजल्ट्स हैं बड़े ड्रास्टिक हो जाते हैं कि बच्चों को जब समझ नहीं आती, पेरेंट्स को वो बताना नहीं चाहते, डरते हैं बताने से, तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं कई बार बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। यहीं पे जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के फ्रेंडली बिहेव करें, उन्हें गलत सही की समझ दें। और सर, पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आप जवाब देंगे तो हमें हमारी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी, तो हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। सर, जैसे ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जो बच्चे या इवन जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, अवेयर होते हुए भी साइबर क्राइम्स में या फ्रॉड में फंस जाते हैं? ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण है लालच। किसी भी चीज का वो फ्री प्राइज होगा। जैसे हमने देखा वो गेम में प्राइज, जैसे बच्चे को लालच क्या कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, ये है। या फिर किसी को लॉटरी का प्राइज का ये रहता है। ये सारे जो लालच है, ये साइबर फ्रॉड में गिरने के लिए हर किसी को मजबूर कर देते हैं। इससे अगर दूर रहे तो कोई कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कोई बड़ा हम कोई बड़ा अच्छा सा मोबाइल देख रहे हैं और उसकी कीमत लाखों में है, और वो कोई बोल रहा है कि 10-12 हजार में मिलता है। कोई बुलेट है, वो बोल रहा है कि मैं 2 लाख की बुलेट बोल रहा है कि मैं 80 हजार में 50 हजार में देने को हूँ। तो ऐसी बातों में ये आ जाते हैं। इससे अगर दूर रहे तो हो सकता है। और बच्चों के साथ में भी अगर ये बातें हो रही है तो इसमें अपना कम्युनिकेशन गैप है, हम बच्चों के साथ में बात नहीं कर रहे हैं। नागपुर की एक घटना है जिसमें 17 साल की और 15 साल की 2 बहनें, माँ बाप घर पे नहीं है, हमेशा मोबाइल पे है, नागपुर से निकले अहमदाबाद के लिए। उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि माँ बाप तुम्हारा ध्यान हम पे नहीं है, तुम हमेशा मोबाइल में लगे रहते हो, तो हम हमारी जिंदगी जीने के लिए निकल रहे हैं, हमको ढूंढो मत। तो पुलिस का जद्दोजहद हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमने ढूंढ के निकाला। लेकिन पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, फिर बच्चे सेफ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर आपने। सर, एज पेरेंट्स बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे ऑनलाइन तो रहते ही हैं, मोबाइल पे क्या चलाते हैं, क्या कर रहे हैं, हर वक्त तो शायद पेरेंट्स नहीं देख सकते, या बच्चे कुछ बताते भी नहीं है, तो उनकी ऑनलाइन सेफ्टी के लिए क्या हो सकता है? ऑनलाइन सेफ्टी के लिए हम इतना कर सकते हैं कि बच्चों को बता सकते हैं कि तुम्हारे जो फोटो है कौन से शेयर करना है, कौन से नहीं शेयर करना है, क्यों नहीं करना है, इसके बारे में उनको अच्छे से समझाना चाहिए। समझाना बहुत जरूरी है, और समझाना डायरेक्ट अगर समझा देंगे तो वो नहीं समझते। उनको किसी न किसी ट्रिक से समझाना चाहिए। जैसे कि मैं कभी बच्चों में गया तो उनको जब कहानी सुनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, देखो बच्चों, आप जो आपने सुना है चिड़िया चिड़िया है, कबूतर कबूतर है, उसको कोई कुछ बोलता है क्या, विशेषण कुछ लगाता है क्या, नहीं लगाता है। लेकिन आप कौवा बोले तो उसको विशेषण क्या लगता है, शाना कौवा। और कौवे को देखो कि कौवा कभी 4 लोगों में ऐसा गुटरगुम करते हुए नहीं दिखेगा तुमको जैसे कबूतर करता है। हमारे लिए भी ये सीख है। मोबाइल में जो भी फोटो निकलता है वो डिलीट होके कहाँ जाता है, मोबाइल में ही रहता है। लेकिन समझो अपन ने केला खाया, केले का छिलका डस्टबिन में गया, डस्टबिन से डंपिंग ग्राउंड पे गया, वहां पे डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया उसका कहानी। लेकिन मोबाइल में अगर फोटो निकलता है तो मोबाइल में ही रहता है।
किसी को अगर सेंड करते हैं किसी भी तरीके का अपना फोटो हो, मैसेज हो, तो वो हमेशा वहीं रहेगा। हम्म, और उसका मिसयूज होके फिर उसके साथ बुलिंग हो गया तो फिर हो सकता है। इससे दूर रहने के लिए हमें ये करना चाहिए। ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना, ये भी बता सकते हैं आप। बस फोटो शेयर करते समय अपना खबरदारी रखो वगैरह वगैरह। पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए, ये बताना चाहिए बस। ओके। सर, अगर हमारा बच्चा कंटिन्यूसली बुलिंग हो रहा है, कि हम्म। अगर हमने कुछ उस पे रोक लगाई है, लेकिन कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी कंटिन्यूसली बुलिंग हो रहा है, तो क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स पेरेंट्स को करने चाहिए, या किस तरह से साइबर हेल्प लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, अभी अपन ने वही चर्चा किया था एक्चुअली। अपन एक तो अगर ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो उसका लिंक लेके रखना है, उसके फोटो का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, जो भी कंटेंट है उसको सेव करके रखो। फिर बाद में 1930 पे कॉल करके आप उनको बता सकते हैं। वहां पे भी आपको लिंक दिया जाता है, जो cybercrime.gov.in वाला जो वेबसाइट है, वहां पे पोर्टल पे जाके आप ये सब जानकारी भर सकते हो। आपका कंप्लेंट वहां पे हो सकता है। या फिर ज्यादा ही हुआ है तो आप तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए या फिर साइबर सेल की मदद लीजिए, आपको जरूर वहां से मदद मिलेगी। मेरे पास जितने भी केस है, हमने सारे आरोपियों को, बच्चों के सारे आरोपियों को पकड़ के लाया था और लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को लगता है अभी एक सुनने में आया है आज के लेक्चर में कि वो कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं रहता है वगैरह वगैरह। इसके कारण वो लोगों की हिम्मत बढ़ती है, हम्म, लेकिन उतने तक ही उनका हिम्मत बढ़ता है जब करते हैं। और हमारे पास अगर उसकी कंप्लेंट आती है तो साइबर क्रिमिनल्स का हर एक फुटप्रिंट वहां पे साइबर वर्ल्ड में रहता है। वर्चुअल वर्ल्ड जो है वहां पे, भले ही किसी का दूसरे मोबाइल से कर दिया हो, हाँ ठीक है, हम दूसरे मोबाइल के नंबर को ट्रेस कर सकते हैं, उसने कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया है उसको ट्रेस कर सकते हैं, वो कहाँ से बात किया उसने उसको ट्रेस कर सकते हैं। एक एक मैटर में हमने देखा कि वो वीपीएन लगा के भी उसने किया था, कि दिखाया था कि फॉरेन से हम बात कर रहे हैं, हम्म। फिर भी हमने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। वो अभी न्याय होगा उसका जो भी होगा। इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर जो मैंने अभी बताया था वो सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, ओवरऑल एज एन, जो आपने इतना सर्विस में किया है, उसके आप पेरेंट्स और बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कि बच्चों की किस तरीके से, या पेरेंट्स को किस तरीके से डील करना चाहिए बच्चों को, बच्चों के साथ? तो ही एडवाइस देना चाहूंगा, डरना भी नहीं और छुपाना भी नहीं। हम्म, जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर के सामने जाने के बाद वो छुपाना नहीं, सेम पुलिस के पास जाना चाहिए। जो भी अपने साथ घटित हो रहा है बिल्कुल आपका अधिकार है। और बच्चों का कभी भी नाम किसी पेपर में नहीं आता है। नए कानून में भी, बीएनएस 2023, ये जो नया कानून है उसमें भी साफ शब्दों में है कि इसका कोई प्रोसीडिंग का भी आपको कभी किसी पेपर में नहीं दिखाई देगा, ना तो नाम दिखाई देगा। कुछ नहीं होता है। आप बिंदास पुलिस स्टेशन में आइए, छुपाइए मत, डरिए मत। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपने ना इतने क्लियरली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए ना, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, आई एम प्रिटी श्योर मेरे साथ साथ बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, सबको थोड़ी तसल्ली मिली होगी और समझ भी आया होगा कि इवन दो साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, हम उनसे बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हो गया है तो हमें डरना नहीं है। हम एनी टाइम एनी डे पुलिस के पास जा सकते हैं, साइबर सेल में जा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सर, आपने जो हेल्पलाइन नंबर्स एंड जो वेबसाइट आपने मेंशन की वो हमने चैट बॉक्स में डाल दी है फॉर एनी पेरेंट, अगर वो विजिट करना चाहते हैं साइट और समझना चाहते हैं। सर, आई ऑल्सो हैड वन मोर क्वेश्चन। जैसे शालिनी मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने बताया कि कि जिस तरह से किसी ने उनको ओटीपी भेजा, सॉरी वो भेजा कि एसएमएस भेजा कि आपको जैसे ₹5 ट्रांसफर करने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग। तो अगर ऐसे किसी तरीके से या अदरवाइज हैकर्स वगैरह या स्कैमर्स कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या हेल्प हो सकती है, या क्या ऐसे में आरबीआई हमारी कुछ हेल्प कर सकती है? आप अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहें इस बारे में।
सर शायद आप म्यूट हैं। हाँ, आ गया। तो अगर ऐसी बात होती है कभी, तो आप, सिंपल सी बात है, अपने मोबाइल से 1930 पे कॉल करिए, या फिर जो वेबसाइट दिया है हमने, cybercrime.gov.in वाला, उस पे आप जाके लॉग इन करिए, अपना कंप्लेंट वहां पे दे सकते हैं। बशर्ते अपने पास सिर्फ अपना अकाउंट नंबर चाहिए जिससे आपके पैसे गए हैं। फिर सामने वाले के पैसे जो है, वो नेशनल साइबर क्राइम का जो हमारा पोर्टल है, उस पे एक बहुत बड़ी तगड़ी टीम, वो चाहे दिन हो या रात हो, आपके पैसे जितना जल्दी आप वहां पे रजिस्टर करेंगे, उतनी जल्दी आपके पैसे बिल्कुल रुक सकते हैं। तो सर इसका मतलब कि हमें डरने की बात नहीं है, हम एक्चुअली कर सकते हैं कि हम उधर कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो हमें वो चीज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, उसका कोई इतना इशू नहीं होगा, राइट? फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, फिर बाद में आप पुलिस स्टेशन जाके अपना एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। ओके ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आज आपने इतना अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, मतलब मेरे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड थोड़ी तसल्ली भी मिली है कि आगे से कभी ऐसा कुछ हो तो हमें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, सही एक्शन सही टाइम पे लेने और एट द अर्लीस्ट लेने हैं। इसके साथ साथ मैं ओपन करना चाहूंगी प्लेटफॉर्म पेरेंट्स के लिए, अगर वो सर से कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहे, आई एम श्योर ही विल बी हैप्पी टू एड्रेस एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज थिंग्स, क्योंकि सर के पास जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा हम सबको। अगर किसी भी पेरेंट के पास कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, तो सर यू कैन आस्क नाउ। ओके सर, आई थिंक आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना कि अब किसी को कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज इट वाज सो थरो एंड इतना अच्छे से, इतना थॉट प्रोवोकिंग था ना कि लाइक आई एम श्योर सबने आज बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ओके, सो जिस तरह से सर ने हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें किस तरह से साइबर सिक्योरिटी का, साइबर बुलिंग से, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, सर ने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया कि ऑनलाइन किस तरह से स्पेशली टीनेजर्स या स्पेशली गर्ल्स वगैरह इस सब में फंस जाते हैं, ऑनलाइन इस सब में फेक ट्रैप्स में कि आप हमें ये भेजिए, ये फोटो भेजिए, हमें मिलने आइए, जैसे सर ने बोला, जैसे शालिनी मैम ने भी बात की थी कि ऑनलाइन कई बार लोग इमोशनल बॉन्डिंग बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कई बार वो लोग कहते हैं अब ऑफलाइन मिलने के लिए आइए, एंड कई बार इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप फॉर्म करी है, बट इसके साथ साथ हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई भी ऑनलाइन फ्रेंड हमें ऑफलाइन मिलने के लिए बुला रहा है, हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने साथ किसी भी एक ट्रस्टेड फ्रेंड या अडल्ट को, प्रेफरेबली अडल्ट, अगर आप किसी अडल्ट को नहीं ले जा सकते तो किसी फ्रेंड को जरूर लेके जाना चाहिए। उनसे मिलने के लिए हमेशा हमें एक पब्लिक स्पेस चूज करनी चाहिए, कभी भी किसी भी हालत में हमें किसी भी क्लोज स्पेस में, जैसे अगर कोई हमें कि किसी होटल में मिलते हैं तो हमें ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए या घर पे नहीं जाना चाहिए, उनके हमेशा पब्लिक स्पेस में मिलना चाहिए। एंड इसके साथ साथ हम जब भी उनसे पहली मीटिंग करने जाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी ना किसी को पता है हम कहाँ जा रहे हैं और हम कब तक वापस आएंगे। ये मिसट्रस्ट नहीं है, ये हमारी सेफ्टी इंश्योर करता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ध्यान रखना चाहिए, अगर हम कभी भी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं या अगर बात भी कर रहे हैं ऑनलाइन, हमें सिर्फ फोटोज या वॉइस कॉल पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे एप्स हैं, बहुत कुछ है जिसकी वजह से एआई की यूज करके हम फेक वीडियोस एंड वॉइस कॉल्स बन सकती हैं। हमें हमेशा उस इंसान से वीडियो कॉल पे आना चाहिए पहले, टू इंश्योर, हम अपना फेस ना दिखाएं बट टू इंश्योर कि वो इंसान सही है, वो जो बोल रहे हैं वही है, वो कैट फिशिंग नहीं कर रहे हैं। कैट फिशिंग एक नई चीज आ गई है जिसमें लोग ऑनलाइन कुछ और होने का या कोई और इंसान होने का प्रिटेंड करते हैं जब वो एक्चुअली में कोई और होते हैं। हमें इन चीजों से भी बचना चाहिए, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। वीडियो कॉल से उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है एंड फेक प्रोफाइल का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ हमें ये इंश्योर करना चाहिए, अगर हम किसी से ऐसे बाहर मिलने जा रहे हैं, हमें अपनी लाइव लोकेशन का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑन रखें, एंड इसके साथ साथ वो हमारे पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर हो। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज जो हम कर सकते हैं वो है फिक्स्ड चेक इन टाइम।
कि अगर मैं जा रही हूँ किसी से मिलने, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देखो आफ्टर 2 आवर्स यू हैव टू गिव मी अ कॉल टू इंश्योर मैं सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर मैं 2 घंटे के बाद तुम्हारा कॉल नहीं पिक करती हूँ एंड उसके विद इन 15 मिनट्स आई डोंट कॉल यू बैक, देन तुम्हें समझना है समथिंग इज रॉन्ग। तुम्हें मेरे पेरेंट्स को या पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि कुछ तो गलत है, यू नीड टू लुक फॉर हिम। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोन पूरा चार्ज्ड हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या फिर पुलिस को रीच आउट कर सकते हैं इमीडिएटली। इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमें हमेशा अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हमें कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा है या लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, हमें हमेशा उस इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना चाहिए। हमें कोई भी प्रेशराइज कर रहा है किसी भी काम के लिए तो हमें मना करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि वो गलत है, जैसे सर ने एग्जांपल्स शेयर किए कि लड़की ने मना किया बट देन शी वाज लाइक कि नहीं नहीं, ना करते करते भी उसने हाँ बोल दिया। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि अगर आपको गलत लग रहा है तो आपको वो काम नहीं करना है। पॉज लेना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरे के लिए पोलाइट होना जरूरी नहीं है, अपनी सेफ्टी इंश्योर करना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है सामने वाले को आप रूड लगेंगे इन द मोमेंट कि आपने मना कर दिया, आपने बात नहीं मानी, पर वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज का जो ध्यान रखना चाहिए एज पेरेंट्स, वो ये है कि पेरेंट्स का रोल ना यहाँ पे बच्चों के लिए एक सेफ्टी नेट बनाना है, उनको सेफ फील कराना है उस इन्वायरमेंट में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आराम से आके आपसे शेयर कर सके। आपको उनके लिए पुलिस बनने की जरूरत नहीं है, पुलिस है वो अपना काम करेंगी, पर अगर आप ही उनकी पुलिसिंग है, जैसे शालिनी मैम ने बोला हेलीकॉप्टर पे रेंटिंग शुरू कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो डरेंगे और वो आपको कुछ बताएंगे नहीं। हमें अपने बच्चों के लिए एक वो जगह बनानी है जहाँ पे बच्चों को ये फील होना चाहिए कि अगर मैं गलती कर भी रही हूँ या मैंने कुछ गलत भी कर दिया है तो मेरे पेरेंट्स मुझे हो सकता है थोड़ा सा डांट दें, पर वो मेरी हेल्प करेंगे रादर देन पनिशिंग मी। ये प्रिकॉशंस बच्चों की फ्रीडम छीनने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी फ्रीडम को सेफ बनाने के लिए है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए है। Very true. And I would also like to add with what sir had said. सर ने बिल्कुल सही कहा। पेरेंट्स को यहाँ याद रखना है कि वो सबसे पहले पेरेंट्स है एंड उनके बच्चों की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ही सबसे पहले है। उसके बाद देखेंगे कि सोसाइटी या बाकी लोग क्या सोचेगी। बच्चे जब तक सोशल मीडिया लिमिट में यूज कर रहे हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी वार्निंग साइंस ऑब्जर्व किए हैं तो पहले बैठ के बच्चे के साथ बात कीजिए, उन्हें अच्छे से पूछिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लीजिए। अगर आपके बच्चे ने बताया कि कुछ उल्टा सीधा कोई मैसेज कर रहा है या धमकी दे रहा है तो बिल्कुल इसे लाइटली मत लीजिए। तुरंत स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए एंड जैसे सर ने बताया वैसे स्टेप्स फॉलो कीजिए बिना डरे। बी वेरी अलर्ट। अगर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं तो चेक कीजिए कि कहाँ जा रहे हैं। हर किसी से गलतियां होती है एंड ये तो फिर भी बच्चे हैं, वो भी एक्सपोज्ड है बाहर की दुनिया में जहां पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, राइट। एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को सेफ रखें। इसीलिए रेगुलर चेक करते रहें कि वो इंटरनेट पे क्या देखते हैं। अगर कभी कुछ कंप्लेन करे या अनयूजुअल बिहेव करे तो प्यार से पूछिए, उनकी बातों को लाइटली मत लीजिए एंड अगर गलती हो भी गई है तो डांटिए मत, वो सोल्यूशन नहीं है। ऑलरेडी बच्चा डरा हुआ होगा, उन्हें सेफ फील करवाइए। अनवांटेड नंबर्स को ब्लॉक करना एंड बिना डरे तुरंत आपको बताना, रिपोर्ट करना सिखाइए। बच्चों को बताएं कि कोई भी कंडीशन में डर के चुप बैठना नहीं है। बस एज पेरेंट्स इतना ध्यान रखिए कि वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो फंस चुके हैं, प्रॉब्लम में है, वो पहले ही गिल्टी फील कर रहे होंगे। ये टाइम नहीं है कि उन्हें हम डांटे या ब्लेम करने या उनसे ज्यादा हम खुद डर जाएं। एकदम से घबराओ मत, आराम से सुनो, जितना वो बोल पा रहे हैं उतना सुनो। डोंट फोर्स देम कि बताओ बताओ आगे क्या हो गया, अच्छे से बताओ, ये बताओ तुम बोल नहीं रहे हो। डोंट फोर्स देम फॉर एनीथिंग। जितना वो कंफर्टेबली आपसे शेयर कर पा रहे हैं आप उतना सुनिए एंड उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो और घबरा जाएंगे। वरना आपको ये करना है कि पूरा मटेरियल स्क्रीनशॉट्स जैसे सर ने बोला वो लेके उनकी बातों को लिख कर राइट एक्शन लो। बच्चों से फोन छीन लेना गुस्से में एज पनिशमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है।
वैसे तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मोबाइल देने से पहले ये रूल बना लीजिए कि आप उनको साइबर सेफ्टी अच्छे से सिखाएं। कुछ रूल्स सेट कर लीजिए म्यूचुअली, क्योंकि अगर आप फोर्स करोगे तो वो छुप के करेंगे, अपने फोन से नहीं तो फ्रेंड्स के फोन से करेंगे। तो छोटे बच्चों को स्पेशली फोन देना ही नहीं चाहिए। जैसे सर ने कहा कि हम अगर उनके हाथ में फोन दे रहे हैं तो हम उनके हाथ में बहुत कुछ गलत चीजें भी सौंप रहे हैं। सो छोटे बच्चों को तो फोन देने का कोई सेंस ही नहीं है। खेलने के और भी तरीके हैं। ये तो हम ही सिखाते हैं कि थोड़ी देर मोबाइल दे दो खाना खाने के टाइम पे, या अगर हम बिजी है तो हम थोड़ी देर ही दे देते कि चलो परेशान मत करो, ये गेम खेल लो, है ना। तो ये हमें छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है। छोटे, लाइक आई सेड, खेलने के और भी बहुत तरीके हैं। और अगर आपके बच्चों के पास उनका पर्सनल फोन है तो एक ही कंडीशन पे दीजिए कि पासवर्ड शेयर्ड होना चाहिए। आपके पास भी पासवर्ड होना चाहिए, उनके पास भी पासवर्ड होना चाहिए। स्क्रीन टाइम फिक्स कर लीजिए। एंड रात को तो बिल्कुल फोन अलाउ मत कीजिए उनके साथ रहने के लिए। इट शुड बी हैंडेड ओवर टू यू बिफोर दे स्लीप। अगर उन्हें बुरा लग रहा है, कंडीशन पहले ही रखो कि मत यूज करो फोन, अगर आप एग्री नहीं हो रहे हो तो। बी अ स्मार्ट पेरेंट। डर के मारे उनके पीछे हेलीकॉप्टर जैसे मत घूमो। गिव देम थोड़ा सा स्पेस। जैसे मुझे भी कुछ पेरेंट्स पता है जिनके बच्चे आके बोलते हैं, पापा जब देख तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, दरवाजा बंद करके अपनी फ्रेंड से बात करते रहो तो आके बार बार खोल के पूछेंगे कि फोन दरवाजा क्यों बंद करके, फोन पे किससे बात कर रही हो। तो ये करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बच्चों को स्पेस दो, थोड़ा सा ट्रस्ट करो उन पे और अपनी पेरेंटिंग पे। उन्हें समझो और अच्छे से समझाओ। डर के मत रहो किसी भी चीज से। थैंक यू सो मच मैम, आपने ना काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एज पेरेंट्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम किस तरह से अपने बच्चों को फोन्स दे रहे हैं या कैसे उन्हें सिखा सकते हैं डिजिटली सेफ रहने के तरीके, एंड मतलब क्या क्या तरीके पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अगर हमारे बच्चे बुली हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट कि और क्या क्या जनरल चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। सो द फर्स्ट वी हैव इज स्टॉप साइबर बुलिंग। यहाँ पे स्टॉप को हम समझते हैं कि स्टॉप क्या है। द फर्स्ट वन इज स्पीक अप। साइबर बुलिंग के इंसिडेंट्स को प्राइवेट रखने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है और इनसे एम्बैरस होने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है। जैसे सर ने मेंशन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि काफी सारे रेगुलेशंस हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ना सिर्फ हमें, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट साइबर बुलिंग। एंड अगर हमारा बच्चा बुली हो भी रहा है या कोई कुछ ऐसा हुआ है, फ्रॉड हुआ है या हमारे बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे वो डर रहा है बताने से, तो हमें एज पेरेंट्स बच्चों को ये याद दिलाना चाहिए कि उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगी। जैसा सर ने बोला, ऐसे कई प्रोविजन अंडर बच्चों की कहीं पे भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। कहीं पे भी किसी को भी पता नहीं चलेगा किसने कंप्लेन की थी, किस बच्चे ने किया था, और कहीं पे कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें छुपाना नहीं है, चुप नहीं रहना है। नेक्स्ट इज, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें अपने बच्चों को साइबर बुलिंग के बारे में सिखाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए व्हाट साइबर बुलिंग इज, ताकि वो समझे, आइडेंटिफाई कर सके और सही तरीके से साइबर बुलिंग से डील कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज ओन अप। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारा बच्चा किसी को साइबर बुली कर रहा है एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो हमें ये बात भी नहीं छुपानी है और हमें ये बात से ओन अप करना है, उसको अवॉइड नहीं करना या इग्नोर नहीं करना है। हमें सिचुएशन को ठीक तरीके से हैंडल करना है। जैसे सर ने बोला, जैसे शालिनी मैम ने बोला कि हमें ना ओपन कम्युनिकेशन स्पेस रखनी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे से समझा सके कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, इसका दूसरों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एंड ऐसे कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी हेल्प के लिए, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि वो क्या गलत कर रहे हैं एंड इस चीज को ओवरकम करने के लिए भी कि वो दूसरों को भी बुली ना करें। एंड द फाइनल वन इज पार्टनर अप। पार्टनर अप करना है हमें स्कूल्स के साथ, टीचर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे पेरेंट्स, साइबर डिपार्टमेंट, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हम एज पेरेंट्स भी इस प्रोसेस में अकेले फील ना करें कि अगर हमारा बच्चा साइबर बुलिंग में फंस गया है या साइबर फ्रॉड्स का शिकार हो चुका है, हम एज पेरेंट्स भी ओवरवेल्म ना हो जाएं, डरे नहीं। एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो पुलिस है, चाहे दूसरे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे कोई भी है, उनकी मदद लें ताकि हम सही स्टेप्स ले सकें और आगे सही तरीके से बढ़ सकें। ताकि और हम अपने बच्चों को ये भी बता सके कि तुम अकेले नहीं हो इस सिचुएशन में, तुम्हें डरना से। इसके बाहर भी, साइबर बुलिंग के अलावा घर के बाहर भी और लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे इस चीज से डील करने में।
इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एक रिस्पेक्टफुल डिजिटल सिटीजन बनाएं। इसका क्या मतलब है? दे नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द डिजिटल स्पेस ऑफ अदर्स। जैसे रियल लाइफ में सबकी एक पर्सनल स्पेस होती है ना, वैसे ही डिजिटल स्पेस भी होती है। किसी की फोटोज किसी की परमिशन के बिना शेयर करना इज नॉट ओके। कमेंट्स में मजाक के नाम पे किसी को इंसल्ट करना, उनको एम्बैरेसमेंट फील कराना, अगेन नॉट ओके। किसी से बिना परमिशन उनकी कोई भी मैसेजेस, कोई भी अगर उन्होंने आपसे अपनी कोई पर्सनल बात शेयर की है, वो दूसरों के साथ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना, अगेन नॉट ओके। एंड आप कोई मैसेज देखते हैं ऑनलाइन या कोई भी आप देखते हैं कोई किसी के साथ कुछ मिसट्रीटमेंट कर रहा है या किसी और को बुली कर रहा है, उसे भी आगे फॉरवर्ड करना बिना सोचे इज नॉट ओके, बिकॉज दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन साइबर बुलिंग। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अगर आप किसी भी गलत चीज को ऑनलाइन, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर हम उस पर किसी भी गलत चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं तो हम उसे चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द सोल्यूशन। इसके अलावा हमें बच्चों को है रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना। इसका मतलब है हमें कुछ भी हम पोस्ट करते हैं हमें सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए, हमें काइंड और अच्छी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, हमें कोई भी लैंग्वेज या जैसे गालियां ये सब यूज नहीं करनी चाहिए, अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह। कोई फेक न्यूज अगर हम देख रहे हैं या हम कोई हेट देख रहे हैं किसी के अगेंस्ट, तो अगर हम उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें उसे बिना बात के फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों से उसी तरह से बात करनी चाहिए जैसे हम चाहें कि वो हमसे बात करें। एंड अगर हम किसी गलत चीज को देख रहे हैं, अगर एक्टिवली आवाज नहीं उठा सकते तो चुपचाप उसे रिपोर्ट तो कर सकते हैं, जैसे सर ने बोला कि हम स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। हमें बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना सिखाना है, नॉट ओनली इन रियल लाइफ बट ऑनलाइन डिजिटल स्पेस एज वेल। इसके अलावा जरूरी हो जाता है कई बार एज पेरेंट्स हम बच्चों की खुद से मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम हैंडल खुद से नहीं कर पाते, तब हमारे लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं हम संभाल लेंगे, पर जब वो नहीं संभाल पाते तब उन्हें लगता है कि शायद आई एम नॉट गुड एज अ पेरेंट, या मेरे में कुछ वीकनेस रह गई कि मैं नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ अपने बच्चे की। बट दैट्स नॉट ट्रू। प्रोफेशनल हेल्प लेना, आइडेंटिफाई करना कि आपको हेल्प की जरूरत है, दैट्स नॉट वीकनेस, दैट्स एक्चुअली स्ट्रेंथ। बिकॉज वो आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सेप्ट करना ही सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। एज पेरेंट्स ये बहुत ज़रूरी हो जाता है टू सीक हेल्प जब हमारे बच्चे का बिहेवियर हम नोटिस कर रहे हैं कि ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, उनके इमोशनल ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया है, उनका बिहेवियर भी इतना चेंज हो गया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, उनके खाने पीने की रूटीन बिगड़ गई है, उनका एपेटाइट खराब हो गई है, आपको उनमें हेल्थ कंसर्न्स दिख रहे हैं। हमारा बच्चा फोन नोटिफिकेशन से डरने लग गया है या उन्हें अवॉइड करने लग गया है, या अपने दोस्तों से भी उसने फोन पे बात करनी बंद कर दी है, या अपने सारे सोशल मीडियाज डिलीट कर दिए हैं। अगर आपका बच्चा ओपनली या इनडायरेक्टली, फिर चाहे वो क्लियरली बोले या इनडायरेक्टली मेंशन करे, सेल्फ हार्म या सुसाइड जैसी बातें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये सारे साइंस हैं ऑफ रिक्वायरिंग प्रोफेशनल हेल्प। अब बात पेरेंट्स के हाथ से ज्यादा जा चुकी है, यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। It's not weakness because early support means long-term safety. This is exactly where Parent Eva comes in. आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं टू रिलेटेड टू एनी issues, whether they are cyber bullying or anything else जो आप as parents suffer कर रहे हैं जिनसे, या आपके बच्चे suffer कर रहे हैं। Yes Deepti ma'am, we'll open up questions in like after this slide मैं एक बार questions open up कर दूंगी for all of the parents, and then you can ask whatever questions you have. Okay, so आप पेरेंट एवा की वेबसाइट पे जाके whatever questions and queries you have, या कोई भी आपको doubts हो regarding you, your child or anything, यहाँ पे experts आप solutions provide कर सकते हैं, proper counseling ले सकते हैं। With this, I would quickly like to wrap it up and then we can open it up for parents. So, आज हमने सीखा कि इस वेबिनार में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे जो मैंने और शालिनी मैम ने मेंशन किया, एंड स्पेशली इंस्पेक्टर वाघ सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से साइबर बुलिंग से बचना एंड एवरीथिंग। सो जस्ट टू रैप इट ऑल अप, सबसे पहले तो साइबर बुलिंग रियल है, बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, इट इज़ वेरी डेंजरस। हमें छुप के कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्जेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हम बच्चों को जब मॉनिटर कर रहे हैं उसका मतलब स्पाइंग नहीं है, बट बच्चों पे ध्यान रखना है ताकि वो किसी गलत चीज में फंस ना जाए जिससे उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो। हमें टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से डरना इज नेवर द सोल्यूशन। जैसे सर ने बोला कि अगर हम फोन यूज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हम फंसेंगे नहीं इन सब चीजों में, बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें समझना है कि हम इन सब से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर फंस गए हैं तो हमें क्या करेक्ट एक्शंस लेने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, पेरेंट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन। पेरेंट्स को ही सबसे ज्यादा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। घर को एक इतना सेफ जोन बनाना है कि जहां बच्चा बिना डरे कह सके कि मम्मा पापा भैया दीदी वॉटेवर, मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मुझे यहाँ पे आपकी हेल्प चाहिए, आई नीड हेल्प फ्रॉम यू। So now I would just like to very briefly mention कि वी आर गोइंग टू बी कमिंग अप सून हमारी कुछ मास्टर क्लासेस के साथ, जिसमें हम पेरेंट्स को कुछ हैंड्स ऑन टेक्निक सिखाएंगे जो ना कि सिर्फ पेरेंट्स बट बच्चों को हेल्प करेगा टू अपग्रेड एंड एनहांस देयर स्किल्स इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। हम यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स सिखाएंगे और इसके अलावा काफी ऐसी चीजों पे फोकस करेंगे जो पेरेंट्स और बच्चों को रियल लाइफ स्किल सीखने में हेल्प करेगा। I would want all of you to stay tuned on our WhatsApp group and other social media handles, जिसपे आप अपडेट्स ले सकते हैं हमारे अपकमिंग मास्टर क्लासेस के लिए। And lastly, I would like to thank all of the parents for being such engaging participants, and especially Shalini ma'am for being my co-host for today, and Inspector Keshav Wagh, उन्होंने आज बहुत अच्छे से सब explain किया, and मतलब it was so informative for, I am sure, all of us, because I know for a fact that I learned a lot from what he shared. Thank you so much, sir, and thank you all the parents. Now I would like to open it up for parents. अगर कोई questions हैं, कोई doubts हैं, anything, any feedback, any questions that you have. Deepti ma'am, you had a question. I think you raised your hand. Yeah, actually, I don't have question, but I want to share some my points of view. हाँ जी. The cyberbullying is very much dangerous because we don't know who is that person that are doing from fake ID. So here are some points some points will be helpful. Like parents should not give mobile to their children blindly. They should watch their child what they are doing and what they are watching in mobile, like that. Parents for this can do password security or can set timer in mobile, and they should guide their child at least till their child's mind maturity, till when they can get to know what is right on or what is wrong. Till that, parents should guide their child. And one more point is parents should do open communication. This is the most important, so that child also will say whatever they are suffering from that cyberbullying, what they are suffering. So parents should do open communication with their child and say they should watch what their child are doing. Their child is doing in that mobile, like call, chatting, video call, or whatever, or what they are watching in their mobile. They should watch that carefully, and they should trust both parents and child both trust each other, and parents should guide their child peacefully, not by getting angry or irritated, so that they can take good care of their child, good care of their child. So here they should do open communication and trust each other, so that child also will say everything. Uh, Child also will not get fear, and their child will say without fear. They will say everything. They will share everything with their parents, Yes, and parents absolutely. also should take care of their child accordingly. Yes, absolutely. मैम आपने काफी अच्छे से सारी चीज को एक्चुअली सम अप ही कर दिया है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, एंड हमें जब तक एज पेरेंट्स हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे अपने बच्चों को साइबर बुलिंग इन सबसे प्रोटेक्ट करने की, तभी हम अपने बच्चों की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। यस, एनी मोर क्वेश्चंस और एनीथिंग?
Welcome, ma'am. Yagnesh ji, I think, has raised his hand. Sir, would you want to say something? Yeah, actually, good evening, ma'am. Ma'am, we have a different type of cyberbullying case in my child's case. Okay. Basically, yeah, when he was a minor, when he was 15 and a half or 16 years, he had some, the personal chat with the other person. All right. Now, somebody else got hold of those chats, yeah, and he published on his social media account. He or she, we don't know the person, it's just one ID. So now they're inviting the people and bullying my son and passing the comments that this should happen, this should happen. So in this case, what we should do, like we want to stop this because first of all, as we understand, nobody is allowed to share anybody's personal chat on anybody's social media account, right, publicly, and invite the people, because it is very personal chat with somebody, to one chat basically. So in this case, we should approach we can go to the cyber crime through the police station, or we should approach the lawyer or somebody. Can you please throw some light on that? Yes, we have Keshav sir. Sir, can you please help us with this situation? Keshav sir? जी बिल्कुल। जी। ऐसे में आपका ये जो मैटर है बहुत सीरियस है, आप सीधा पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, अपना कंप्लेंट जो हुआ है आपके साथ में उसका लिंक जो भी होगा, कहाँ पे हो रहा है, वो वेबसाइट हो या फिर कोई भी ऐप हो। इसे इंस्टाग्राम पे हो रहा है सर। इंस्टाग्राम पे उसका इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, वह लिंक जो है वो आप निकाल लीजिए सामने वाले का, और अपने बच्चे का एक लिंक रहेगा। ये दोनों लिंक लेके आप पुलिस स्टेशन पहुंच सकते हैं, और जो भी उसने कमेंट्स या जो भी उसने आपके बच्चे के साथ में लिखा है वहां पे, जो भी फोटो हो गया, जो भी होगा, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के, उसका प्रिंट निकाल के आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, अपना कंप्लेंट लेके, कंप्लेंट लिखित में रखिए और वहां के साइबर सेल को दीजिए। आपके ऊपर जो भी है वो कर सकते हैं। बाय द वे, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली ओमान से बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया। मेरा बेटा है वो उधर है इंडिया में। हाँ, इंडिया में अगर महाराष्ट्र में है तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, बाहर भी है तो भी मदद हो जाता है। उनको कहो कि 1930 ये नंबर पे अगर वो यहाँ पे कॉल करते हैं तो भी उनको एक लिंक मिलेगा। वो बच्चा 18 साल के नीचे का है। हाँ, जब ये हुआ था तब वो माइनर था, वो 16 साल का था, 15.5। अभी 18 हो गया है। दिस इज द मैटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.5 years सर। ठीक है, अभी भी कंटिन्यू है क्या वो मैटर? हाँ, वही, इसीलिए तो क्योंकि हम लोग क्या सोचे थे कि पहले जब हुआ था ये सेम चीज उसने, जो आईडी वाला बंदा है या वाली बंदी है जो भी है, ओके, उसने पहले 2-2.5 साल पहले किया था, और that time he was like very stressed and you know what happens in teenagers। एक तो ना, एक काम करिए आप, उसको थोड़ा मेंटली भी उसको चाहिए कि वो ठीक हो जाए, उसमें बहुत सारा प्रेशर आ गया होगा। आप जी सर, हाँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उससे ऊपर। और दूसरा क्या है कि हम लोग बाहर है, वो वहाँ पे अकेला है, तो वो थोड़ा डर रहता है हमको कि भाई कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। नहीं, इनफैक्ट he is in Bombay only, he is in Mumbai। if he is in Mumbai, he can meet me. I'm at Matunga police station, Mumbai. Okay. It's near to Dadar. Okay. I can provide is it possible to please sir, if you can, that will be a great help, because we are going through a very big mental stress at the moment. Give him my mobile number. My contact number is 99 67 4867 11. Yes. Okay sir, thank you so much sir, thank you so much. Just a moment, my wife is here sir। Hello, yes, good evening sir। Actually as being a parent we are very very concerned of our child, and हमें ये सर पूछना था कि ये जो मैटर है उसमें हमने एक आध लॉयर के थ्रू जाने की, इतनी पर्टिकुलर उसके थ्रू ही जा सकते हैं, डायरेक्ट हम कुछ कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप 1930 पे कॉल करने को बोलिए उसको, जो भी उसके साथ हो रहा है। मैंने जो कहा लिंक वगैरह उसको लेके रखना है सामने वाले का,
हाँ तो उसके स्क्रीनशॉट लेके रखना है। फिर बाद में 1930 पे कॉल करेंगे आप, वो एक फॉर्म मिलेगा आपको उसमें, और वो फॉर्म ओके आप फिलअप करेंगे वो पोर्टल पे। फिर उसके बाद में आपको जरूर जरूर मदद मिलेगा, ऑनलाइन भी मदद मिलेगा। ऑफलाइन अगर चाहिए तो बीकेसी में साइबर सेल है, अपना साइबर का पुलिस स्टेशन है, एक डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन है फॉर मुंबई, दैट इज द बिगेस्ट वन पुलिस स्टेशन इन मुंबई। which one it is, sir? What name you say? बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। बांद्रा कुर्ला ओके BKC. Okay, हाँ, okay, fine. बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन Cyber police station. आईसीआईसीआई बैंक के सामने है। Okay. या फिर Perfect. उनको कहो कि मेरे से भी कॉल किया तो भी मैं 100% उसकी मदद कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। Thank you so much, sir. Thank you so much. Really appreciate it. Really appreciate, sir. Fine, sir. Fine. The thing, this satisfies us a lot, and really, it's helpful, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. And also, I would say, like to say, ki if your son, child is stressed and is going through stress, and you are also not with your child, then definitely you should opt for counseling. You can at least, तो कि थोड़ा सा stress free होगा and चीजों को manage करने में थोड़ा सा help ले पाएगा. Otherwise, बिल्कुल as बिल्कुल मैम, sir बिल्कुल said, मैम. he will be very, he must have been pressurized mentally by now. So at least you True, should true. think about that too. Absolutely. How do we go about it, ma'am? सर जब भी जैसे राधिका मैम ने भी शेयर किया था, दे कैन अप्रोच अस आल्सो, मी एंड राधिका मैम बोथ आर काउंसलर्स, वी कैन डील विद इट, ऑनलाइन सेशंस वी डू टेक। तो आप जैसे Okay. यू कैन go to our website of Parent Eva and from here you can select an option, यहाँ पे आप Parent बुक कर Eva. सकते हैं जी। I'll just take a screenshot of this. This is the one, right? श्योर The one which you are जी showing. Yeah. Yes, जी। sir. The website is also there. Website का वो parenteva.com is there. You can just check that. You can book your slot and then at least you can ask your child to talk to any one of us True, true, so true. that we will be Perfect. there to Sounds good. help and थोड़ा सा उसको relief मिलेगा तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से रह पाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल sir. बिल्कुल ma'am. Absolutely. It's a great help actually. Thank you and don't worry sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू Thank you. And thank you so much, sir, for having that trust in us कि आपने इतनी important चीज़ हमारे साथ share की। I'm so sorry for what you're going through and आपका बेटा जो चीज़ से suffer कर रहा है। बट जैसे True. जैसे इंस्पेक्टर वाघ ने भी आज बताया, सर ने हमें बताया कि हेल्प अवेलेबल है। जैसे शालिनी मैम ने मेंशन किया, आप हमारी वेबसाइट जो भी शेयर कर रहे हैं इसका लिंक Sure. में एक बार डाल देंगे सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू एक्सेस। Absolutely. जाके सेशन बुक कर सकते हैं एंड एनी प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, यू डोंट हैव टू वरी, इट विल बी ऑल राइट। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Really appreciate it. बिफोर 2 years तो हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम कुछ एक्शन ले, बिकॉज वी ऑल वर इन सो मच ट्रॉमा, so we didn't think when this happened that time, we didn't think about these all things. But now the scenario is again this, whoever ID is there, they are like provoking, so now again he's going through, so now we don't want to suffer more, so that's why we are thinking somewhere to start the action. मैम आपने जैसे कहते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। Yes, yes, yes. जरूर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिफाई करना एंड एक्सेप्ट करना कि हेल्प की जरूरत है, कुछ एक्शन लेना है, यही सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आगे हो जाएगा। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही। Thank you so much, ma'am. Thank you. No problem. Thank you, sir. Thank you. That's it from my side. Yes, Deepti ma'am, you want to add something? Actually, I just want to get police, means that crime inspector number, so that I can keep that number for future any problem. If in future any problem happens, then I can normally I can contact or like that. सर का नंबर हम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एनीवन व्यूअर्स एंड कैन वांट टू नोट डाउन कैन नोट डाउन फ्रॉम द चैट बॉक्स। कैन वी हैव सर's नंबर इन द चैट बॉक्स? Yes, I think that will be
Yes, बट देन ma'am. आप एक्चुअली लिंक से भी जैसे सर ने बताया हमें जो नंबर दिया उस पे भी हम जाके बिल्कुल हम बात कर सकते हैं एंड आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आप हम में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं वी कैन गेट यू कनेक्टेड टू सर आल्सो Okay, ma'am. Thank you. जी Thank you, ma'am. ओके, सो मैं एक बार पेरेंट्स को गो थ्रू कराना चाहूँगी हमारी जो पेरेंट एवा की वेबसाइट है। आप यहाँ से, ये हमारा एक्सपर्ट्स पेज है, यहाँ पे आप देखेंगे शालिनी मैम एंड मेरा उस पे अकाउंट है। आप यहाँ पे डायरेक्टली हमारे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। यू कैन ओपन आवर प्रोफाइल, हमारा एक्सपीरियंस देख सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ से बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको डायरेक्टली बुक सेशन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप अपना टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद का। वहीं पे आपकी पेमेंट भी बहुत इजीली हो जाएगी। इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस दैट यू कैन हैव अ लुक एट। इसके साथ साथ मैं आपको अगर हमारा प्राइसिंग पेज एंड प्रीमियम प्लान्स पे भी ले जाना चाहूँगी। सो कैन वी गो टू द प्लान्स एंड प्राइसिंग वंस। तो ये हमारा प्लान्स एंड प्राइसिंग का पेज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा प्रीमियम फैमिली वेलनेस प्लान है विच इज़ लाइक एन एनुअल प्लान। तो इसमें हम बात करेंगे, हम इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफर कर रहे हैं पेरेंट्स को, जहाँ पे रिलेटेड टू एनी एक्टिविटी, रिलेटेड टू एनी इश्यूज जो वो पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं या बच्चे कोई भी चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई भी चैलेंजेस हैं, एनीथिंग दे कैन टॉक अबाउट दैट। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनलाइज्ड गाइडेड एक्टिविटी के उनको बना के देंगे फॉर द पेरेंट, नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम बट टुगेदर एज अ होल। जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे हो सकता है पेरेंटिंग बर्नआउट एंड स्ट्रेस है, या फिर अगर पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज करने में, प्रोफेशनल लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, जैसे आज हमने बात की कि कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है अमंग पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, तो उसका ध्यान रखने के लिए एनीथिंग, तो उसके लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। ये सेशन बुक करने के बाद, ये प्लान लेने के बाद आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर, इन डेप्थ, इन डिटेल, जिसके वजह से आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेड एक्टिविटी प्लान मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मिलता है एक फ्री असेसमेंट कॉल, 30 मिनट असेसमेंट कॉल विद द एक्सपर्ट, जिसमें आपकी कोई भी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, उसके पर्सनलाइज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी गेटिंग एक्सेस टू रेगुलर एक्टिविटीज जो ऑनगोइंग चलती रहेंगी, पर्सनलाइज होंगी, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी, जैसे चेकलिस्ट हो सकती हैं, काफ़ी स्टोरीज हो सकती हैं, प्रिंटेबल्स हो सकते हैं जो आप प्रिंट करके अपने बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ जिनसे आपके बच्चे एंगेज कर सकते हैं। हम इसे कई फैमिली बेस्ड गेम्स भी प्रोवाइड करेंगे इसमें, जो आप और आपके बच्चे साथ में इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज नॉट ओनली कि आप अकेले हैं या बच्चा अकेला यूज कर रहा है, यू कैन डू देम टुगेदर एज अ फैमिली। इसके साथ साथ आपको एवरी मंथ इस प्लान के अंडर 115 मिनट SOS क्विक सेशन मिलेगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, कोई सडन प्रॉब्लम है और एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, तो वो 1 फ्री 15 मिनट SOS कॉल एवरी मंथ। इसके साथ साथ आपको रेगुलर 10% ऑफ मिलेगा सेशंस बुक्ड एवरी मंथ, जो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस बुक करेंगे, एंड आपको फॉलोअप्स भी मिलेंगे फ्रॉम अ डेडिकेटेड एक्सपर्ट जो आपके साथ पूरा थ्रू आउट द प्लान रहेंगे। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अदर प्लान्स, जैसे आप ये देखेंगे, दीज आर मंथली प्लान्स विच इन्वॉल्व मैनेजिंग मोबाइल एडिक्शन या अग्रेसिव बिहेवियर बच्चों में है, या फिर इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग, हैंडलिंग पीयर प्रेशर जो आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है, स्पेशली एडोलेसेंट्स या टीनेजर्स जैसे हम कहते हैं बहुत कॉमनली। इसके अलावा जैसे ये हमारे मंथली प्लान्स हैं, इसके अलावा वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव करियर काउंसलिंग प्लान एज वेल। दिस इज अ वन टाइम प्लान, जैसे अगर आपके बच्चे हैं इन देयर लाइक 9th 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, उनके करियर रिलेटेड आप वरिड हैं, तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ले सकते हैं विच वुड इन्वॉल्व एन एप्टीट्यूड असेसमेंट, अ पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड एन इंटरेस्ट असेसमेंट। इसमें हम ओवरऑल ये सारे डायमेंशंस पे फोकस करेंगे आपके बच्चे की, टू हेल्प अंडरस्टैंड कि उनके लिए कौन सा करियर पाथ बेस्ट रहेगा। इसके बाद एक फॉलोअप 30 मिनट कॉल मिलेगी 1-on-1 विद द एक्सपर्ट, जिसने आपके बच्चे का ये असेसमेंट की है पूरी, आपके साथ रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट्स डिस्कस करने के लिए, जो आपको राइटिंग में भी रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद वील हैव अ कॉल जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव जनरल साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स,
जिसमें हम सर्विसेज लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इमोशनल मैनेजमेंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसकी असेसमेंट होगी सिंपल, जो अगर आप ये प्लान लेते हैं तो उसकी असेसमेंट की जाएगी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, एंड देन 15-minute कॉल आफ्टर दिस हमारे एक्सपर्ट्स के साथ टू डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ इट. So this is about our pricing and plans. इसके अलावा you can see on top there is a parent eva gift coupon mentioned एकदम टॉप पे. आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको एकदम टॉप पे ही दिख जाएगा. when if you can use this coupon code, या आपको कोई भी आप हमारा प्लान लेते हैं उस पे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा इस कूपन कोड की हेल्प से किसी भी एक प्लान के ऊपर. With this, the WhatsApp number that we have already shared in our chat box in the meeting, आप उस पे हाई मैसेज कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, if you want to explore more, learn about anything more, या अगर आप in general भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, so you can contact us on this number. आप एक हाई मैसेज कर सकते हैं अपने नेम के साथ, and whatever queries or doubts you have, we can follow up on that. Yeah, so I think that was all. Yagnesh sir, आपने अपना hand raise किया था, so anything else you want to add or ask? No, that was by mistake actually. वो किया था, वो ऐसा ही रह गया था. I just switched it off. Okay. Yeah. Okay, And ma'am, okay, can no I have problem. your Thank you. number because I cannot see the chat box here, the WhatsApp number, so I can send you a message right away Okay for the sir, मैं एक बार आपको consultation. yes sir, sure, मैं डिक्टेट करा देती हूँ. 75 75 08 08 21 21 6 6 777. 777. Fine, ma'am. So ये हमारा पेरेंट एवा का Okay. ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे रीच आउट कर सकते हैं. कोई भी चीज Sure. किसी भी रिगार्डिंग क्वेरी के आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. Done. Understood, ma'am. Thank you so much. Thank you so much sir. And supposing if you have like one more thing, if you want to Thank you. meet the sir, in the station, we do have to take the appointment, or I mean, how do we go about it? Because I'm sure he cannot be free all the day. I mean, for anybody, just to be available Yes, at the station. So how do we केशव approach सर, it? केशव सर आप प्लीज एक बार सर को बता देंगे, यज्ञेश सर को. डबल 9 Yeah. Number ये you पूछ gave रहे हैं कि already. ये पूछ रहे कि अगर आपसे कॉल करना हो या आपसे आके स्टेशन पे मिलना हो तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना है या कोई पर्टिकुलर टाइम है जिस पे वो आपसे आके बात कर सकते हैं? एक मैसेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, कॉल कर लेता हूँ. Done. Okay, sir. प्रॉब्लम Understood. सीरियस है, इसलिए जल्दी करना Yeah. जरूरी है. बहुत दिन हो गए, बच्चे के अभी मन पे बहुत परिणाम हो गया होगा. ठीक है, अपन देखेंगे. वो हो सकता है वो प्रेशर में होगा, लेकिन उसको डरने का जरूरत नहीं है. मिलके सब कर सकते हैं अपन. वो कम से कम आपके कॉन्फिडेंस में तो है, बच्चा बात तो कर रहा है ना. हाँ, वो तो है सर, वो तो है. That also we are trying our best to calm him down as much as we can. But physically उसके साथ होना और रिमोट पे होना काफी फर्क पड़ता है. ये बहुत फर्क पड़ता है. आप मेरा कल दिन भर मैं इधर ही रहूंगा, आप कॉल कर सकते हैं सवेरे 8 से. हाँ सर, मैं भी एक्चुअली इंडिया का ट्रिप कर रहा हूँ विद इन 10 to 12 days. So if possible I can come with my child and see you there. Yes, बिल्कुल. क्योंकि मैं 2 दिन ही मुंबई में रहूंगा, तो अगर हो सकता है आप तो थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे, तो क्या मैं भी समझ सकता हूँ क्या करना चाहिए आगे अभी. जी बिल्कुल. है ना. ठीक है सर. I'll send you the hi message and then please guide us and what time is suitable for you, so we can come and meet you sir at that time. I think so. Yes. Yeah. Thank you sir. Thank you so much. So nice of you sir. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू यज्ञेश सर अपने डाउट्स पूछने के लिए. थैंक यू सो मच केशव सर. आई थिंक आपने काफ़ी हेल्प करी है आज सभी पेरेंट्स की यहाँ पे, एंड आई एम श्योर सभी पेरेंट्स बहुत पहले से बेटर फील कर रहे हैं, स्पेशली हैविंग योर सपोर्ट, एंड आप जितना हैंड्स ऑन अवेलेबल हैं सारी प्रॉब्लम्स के लिए. थैंक यू सो मच सर, दैट मीन्स अ लॉट टू अस. एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पेरेंट्स for being such engaging participants throughout the webinar. Thank you so much everybody for joining. Thank you. We'll see you next time.
Thank you.